Bismillahirrahmanirrahim. Today it is 15th of July with the topic named as Marketing Planning, chapter number 20. Let's Today we are going to start with the marketing unit, unit number 3, the marketing chapter number 20. We already studied 4 chapters in AS, market and marketing, chapter number 16, market research, which was the chapter number 17, marketing mix, chapter number 18 and 19. So let's start with the concept of marketing planning, chapter number 20, A-level business studies, A2 business studies. Topic named as market planning or marketing planning. Before studying the marketing planning, we revise a definition, a concept before studying the marketing plan. The business plan. A business plan is acting as a detailed document which describing all of the activities related with the business. Whenever the business has been established, 4 parts of the business has been decided. The plan for marketing department, that is called the marketing plan, finance accounting plan, production plan, and the plan for human resource. So business plan 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, एचआर और प्रोडक्शन. तो जो आज उसका एक पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मार्केटिंग प्लान. किसी भी बिजनेस की सक्सेस या फेलियर में जो रोल है मुख्तलिफ चीजों का, उसमें जो मेन रोल है वो आपके मार्केटिंग प्लान का. It is a process of developing aims and objectives. It is a process of developing the goals and objectives. Aims नहीं बोलना चाहिए क्योंकि aim जो है वो business का है. Marketing department objectives को plan करता है. Marketing department establishing marketing departmental objectives and goals, and these goals are related with the marketing mix. Product, what kind of product हम ऑफर करेंगे, क्या उसकी प्राइसिंग होगी, प्रमोशन होगी, क्या उसकी प्लेस होगी. क्या मार्केटिंग प्लान को हम मार्केटिंग मिक्स कह सकते हैं. जिस तरह चैप्टर नंबर 18, 19 दो चैप्टर में हमने 4 कंपोनेंट्स को स्टडी किया. द मार्केटिंग मिक्स इज अ सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स that describing the whole process of marketing, that based on offering the product, setting the price, having the promotion and deciding the place. तो क्या हम मार्केटिंग प्लान को मार्केटिंग मिक्स कह सकते हैं. हाँ जी बिल्कुल. मार्केटिंग प्लान बेसिकली इसलिए बनाया जाता है कि एक्चुअली आप मार्केटिंग मिक्स को डिसाइड कर सकें. मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाएंगे आज. मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप किया जाएगा एंड द बजट allocated for the marketing department, and that the marketing integration of a marketing mix. Integration बिल्कुल AS की जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जो लास्ट टर्म थी वो इंटेग्रेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स थी. That 4 marketing mix element are complement, are joined together, bind together in order to offer the effective marketing departmental process. चारों डिपार्टमेंट्स को, चारों मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स को सही तरीके से ज्वाइन करना है और दे शुड बी वर्क वेरी वेल in order to offer the effective marketing plan. मार्केटिंग प्लान से स्टार्ट किया जाता है. ये इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का जिसमें हमने मार्केटिंग प्लानिंग के बारे में पढ़ना है और ये पूरा चैप्टर, ये जो 2 चैप्टर अब हमारे पास चलने लगे, ये मार्केटिंग प्लानिंग के बारे में ही स्टडी किए जाएंगे. सेल्स फोरकास्ट है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, मार्केटिंग प्लान है, पैन ग्लोबल पैन लोकल स्ट्रेटेजीज को स्टडी किया जाएगा. स्टेप बाय स्टेप मार्केटिंग प्लान के कुछ स्टेप्स है जिसमें सबसे पहले द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट. पर्पस होगा बिजनेस का, सॉरी मिशन होगा बिजनेस का, पर्पस होगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का. क्या फर्स्ट पार्ट को हर साल नए सिरे से डिफाइन करना जरूरी है? Yes, the answer is yes, because the marketing department change the marketing objective every year.
So the first part of the marketing plan provide the target audience the main objective of the marketing department this year. एग्जाम्पल दी जा सकती है कि इस साल मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि पर्टिकुलर सेल्स लेवल को अचीव करना, और इस साल मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड किया है कि कोई नई प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना. The second part, you already know about the mission statement. The mission statement is a common statement जो कि डिजाइन की जाती है. It is not actually designed to change every time. Mission statement is a document phrased in a way to motivate the stakeholder. It shows the main aim, main purpose, the core purpose का word आपने अपने A levels के फर्स्ट ईयर में पढ़ा, जो कि बिजनेस का मेन एम है. आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव भी उसी मेन एम पे बेस करेंगे. Purpose and a mission, and the second one is situation analysis. Situation analysis. Study the situation of the market. It is very easy. मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जिनको आज हमने स्टडी करना है. बिफोर अभी आपका मार्केटिंग प्लान स्टार्ट हुआ है, अभी आपने इसको लिखना है. मार्केटिंग डिपार्टमेंट marketing planning that is started with the marketing objectives. जब आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को लिखते हैं तो आपकी मार्केटिंग प्लानिंग स्टार्ट होती है. सो उससे पहले सिचुएशन को एनालिसिस किया जाता है. बिल्कुल इजी एग्जांपल है, जैसे अगर आपने किसी जगह घर बनाना है तो पहले आप उस लैंड को जाके विजिट करते हैं, सिचुएशन का आइडिया लेते हैं. इस तरह अगर आप किसी के घर विजिट करने गए हैं और आप उसको कॉल करते हैं तो वो आपसे कहता है कि आप अपनी सिचुएशन, करंट लोकेशन बताएं ताकि मैं आपको जो रास्ता है, डायरेक्शन है, वो गाइड कर सकूं. अगर आप उसको बोले कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो वो आपको कैसे गाइड करेगा कि आपने कहाँ जाना है. सो सिचुएशन एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द मार्केट रिसर्च थ्रू प्राइमरली मार्केट रिसर्च और सेकेंडरीली मार्केट रिसर्च, just to just in order to know the market situation, the type of target audience, market में लोगों की इनकम क्या है, लोगों का टेस्ट फैशन क्या है, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है. सिचुएशन एनालिसिस में कुछ चीजों को फोकस किया जाता है जो कि नेक्स्ट स्लाइड में बताई गई हैं. जैसे कि सबसे पहले प्रोडक्ट को फोकस किया जाता है, प्रोडक्ट एनालिसिस, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस. आपकी कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं या आपने बिजनेस है, कौन कौन सी प्रोडक्ट आपकी मार्केट में न्यू लॉन्च होंगी. कंपैटिटर्स, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट इज ऑफरिंग या कंपैटिटर जो है वो ऑफर कर रहे हैं. तो जो फर्स्ट एलिमेंट आपने सीखा वो है प्रोडक्ट का एनालिसिस. जो सेकंड एलिमेंट है वो है कंज्यूमर का एनालिसिस, टारगेट मार्केट एनालिसिस. कंज्यूमर के बारे में इंफॉर्मेशन गेट करते हैं, आपकी प्रोडक्ट कौन सा कंज्यूमर जो है वो बाय करेगा. मेल बाय करेंगे, फीमेल, या डिफरेंट एज क्लास, या ये किड्स के लिए, या ये यंगस्टर्स के लिए, या ये एजिंग पॉपुलेशन के लिए. तो टारगेट मार्केट को एनालाइज किया जाता है. टारगेट मार्केट एनालिसिस में कंज्यूमर का बिहेवियर थ्रू द मार्केट रिसर्च एंड द नंबर ऑफ टारगेट ऑडियंस अवेलेबल. एक प्रोडक्ट को बाय करने वाले मार्केट में टारगेट ऑडियंस कितने हैं. अगर इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल ली जाए तो इफ यू आर सेलिंग अ मैस प्रोडक्ट, अगर आप कोका कोला सेल करते हैं तो फिर आपकी सारी ही टारगेट ऑडियंस है. बच्चे भी आपकी टारगेट ऑडियंस हैं, बड़े भी, मेल भी, फीमेल भी. एवरीवन इज एक्चुअली, बिकॉज यू आर सेलिंग द मैस टाइप प्रोडक्ट. टारगेट ऑडियंस को आपने एनालाइज करना. अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो लाइक मोटर बाइक्स हैं जो कि मेल के लिए हैं, तो मेल टारगेट ऑडियंस को आपको एनालाइज करना पड़ेगा. अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं जो कि फीमेल्स के लिए हैं, तो उनको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टारगेट ऑडियंस को एनालाइज करना पड़ेगा. सो फर्स्ट एलिमेंट हुआ प्रोडक्ट से रिलेटेड, सेकंड एलिमेंट कंज्यूमर ऑडियंस से रिलेटेड, थर्ड एलिमेंट कंपैटिटर का एनालिसिस. स्वॉट एनालिसिस इज कंडक्टेड अबाउट द कंपैटिटर. उसकी स्ट्रेंथ के बारे में स्टडी किया जाता है, उसकी वीकनेस, वीक एरियाज के बारे में, उसके क्या वीक एरियाज, उसके पास क्वालिटी परसेप्शन, क्वालिटी इमेज कम है, उसकी प्राइसिंग ठीक नहीं है. आप उस कंपैटिटर की वीकनेसेस का बेनिफिट ले सकते हैं और उसकी स्ट्रेंथ्स को अडॉप्ट कर सकते हैं. कंपैटिटर के बारे में स्टडी करना, स्पेशली उस वक्त व्हेन द बिजनेस इज ऑफरिंग द प्रोडक्ट इन अ कंपैटिटिव एनवायरनमेंट. अगर आप मोनोपोलिस्टिक हैं तो देयर इज नो नीड टू स्टडी अबाउट द कंपैटिटर. वाडा क्योंकि मार्केट में सिंगल सेलर है, वो किसी को स्टडी नहीं करेगा. लेकिन जब कंपटीशन में आप आएंगे तो कंपैटिटर को एनालाइज कर लेना बेहतर होगा आपके लिए.
एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी की चार चीजों को आप एनालाइज करेंगे बेसिकली, इकोनॉमी, इकोनॉमिकल सिचुएशन को, सोशियोलॉजी को, सोशल सर्कमस्टांसेस को, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को, एक एनालिसिस आपको नजर आ रहा है यहाँ पे पेस्ट एनालिसिस, ये चार चीजों का कॉम्बिनेशन है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट एंड द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब ये थोड़ा इंप्रूव हो चुका है पेस्ट जी के नाम से, ग्रीन एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी, और पेस्ट जी एल स्टैंड फॉर लीगल एनवायरनमेंट। ये सारी चीजों को स्टडी किया जाता है बिफोर डिजाइनिंग एंड एस्टैब्लिशिंग द मार्केटिंग प्लान। This is we talk about the situation analysis. First point था purpose, marketing department का objective. Second, आपके पास था situation को आपने analyze किया, and the third one that we start the marketing planning now, that is the marketing objectives and the strategies. Marketing objective एक स्लोगन पढ़ाया गया था, स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, एंड टी स्टैंड फॉर टाइम स्पेसिफिक। सो स्पेसिफिक, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को आपको स्पेसिफिकली ये डिसाइड करना होगा कि क्या ऑब्जेक्टिव इस साल आपको लेके चलना है, या ये ऑब्जेक्टिव डिपेंड करता है कितनी देर का है, दैट ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन 1 ईयर, 6 मंथ्स, क्वार्टर, 4 और 3 मंथ्स, या 1 मंथ, 15 डेज, whatever form of short term और long term objective आप डिस्क्राइब करना चाहें। लेकिन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाएगा और एक वक्त पे एक ऑब्जेक्टिव पे काम किया जाएगा। एक एग्जांपल इस तरीके से ऐड की जाती है कि इस साल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है कि हमने मार्केट में मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है। वी हैव एन ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द मार्केट शेयर बाय 5%। कंपटीशन को, कंपैटिटर से हमारा मार्केट शेयर 5% इंक्रीज होगा। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को डिक्लेयर किया गया, एट द एंड ऑफ द ईयर इसको इवैल्यूएट किया जाएगा कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हमने किस हद तक अचीव किया या नहीं किया। इवैल्यूएशन इज नेसेसरी। रिव्यू एंड कंट्रोल प्रोसेस इज देयर, जिसमें आप इवैल्यूएट करते हैं एट द एंड कि आपने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया, उस ऑब्जेक्टिव को आपने कितना अचीव किया। एग्जाम्पल दी गई है, मार्केट शेयर एज एन ऑब्जेक्टिव है, सेल्स ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ब्रांड नेम या ब्रांड इमेज डेवलपमेंट एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, कंज्यूमर ऑडियंस को गेट करना, रिटेलर्स, होलसेलर्स को अपने सर्कल में लाना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स पे काम कर सकते हैं। बट इफ यू वांट टू अचीव द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, दुनिया में हर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाना पड़ता है, एंड दैट प्लान इज कॉल्ड अ स्ट्रेटजी, मार्केटिंग प्लान, marketing strategy. Now here we can call the strategy means the marketing mix, the way you are selling, you are achieving this your objective this year. Marketing objective जैसा ऑब्जेक्टिव होगा वैसी ही उसकी स्ट्रेटेजी होगी। अगर एक स्टूडेंट ए ग्रेड लेना चाहता है उसकी स्ट्रेटेजी अलग होगी, एक स्टूडेंट जो है वो पास आउट होना चाहता है उसकी स्ट्रेटेजी ऑब्वियसली सेपरेट होगी। ये बिल्कुल ऐसे एग्जांपल है कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअली डिफाइन करेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की तरफ चलते हैं। नंबर 3 पॉइंट हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने सबसे पहले सीखा है कि मार्केटिंग गोल्स क्या हैं, और उसके बाद इसी के नेक्स्ट स्लाइड पे हम पढ़ेंगे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स की। पहले कुछ एग्जांपल दी गई हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दी। नंबर ऑफ कस्टमर्स शुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फर्म, increasing the brand awareness through promotion, increasing the sales revenue, profitability, and the market segment की एग्जांपल, the fourth objective की एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। एक सेगमेंट पे आप काम कर रहे हैं, जैसे अगर आप काम कर रहे हैं बच्चों के क्लोथिंग पे काम कर रहे हैं, तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू फाइंड अ न्यू सेगमेंट। आप किसी लेडीज क्लोथ्स में आ सकते हैं, जेंट्स क्लोथ में भी आ सकते हैं, नए सेगमेंट की तरफ आप जा सकते हैं। तो ये भी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हम एक सेगमेंट पे काम कर रहे हैं, हम कमर्शियल कार्स पे काम कर रहे हैं, अब हम स्पोर्ट्स कार्स पे काम कर रहे हैं, तो नया सेगमेंट जो है वो कैप्चर करना भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। What is the strategy? The marketing strategy is the main component that leads to business success or failure. याद रखें, आपका मार्केटिंग प्लान मींस मार्केटिंग स्ट्रेटजी और मार्केटिंग मिक्स। मैंने एक ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी को 3 नामों से बताया, मार्केटिंग प्लान, मार्केटिंग स्ट्रेटजी और मार्केटिंग मिक्स। All these 3 things are same actually.
मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किसी भी बिजनेस का जो मेन कंपोनेंट है, मेन एलिमेंट है, जो सक्सेस या फेलियर का जो कंपोनेंट है वो उसका मार्केटिंग प्लान है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट में गोरमे मार्केट में फेलियर गई है तो मेरे ख्याल में उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है, उस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ने उसको फेलियर को लीड किया है। इसी तरह अगर मार्केट में कोई बिजनेस सक्सेसफुल है तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी जो मार्केटिंग प्लान है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। समटाइम्स बिल्कुल एक स्मॉल रेस्टोरेंट भी ड्यू टू एक इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हो जाता है। समटाइम्स एक अच्छा रेस्टोरेंट जो कि रिसोर्सेज के साथ मार्केट में आता है लेकिन मार्केटिंग प्लान या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डेवलप करने में फेल हो जाता है। सो व्हाट आर द मार्केटिंग एक्शंस या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज? Marketing strategies or the policies are the plan activities designed by the marketing department to achieve the marketing objective. एक एग्जांपल दी गई है सोसाइटी बेस्ड मार्केटिंग या सोसाइटल मार्केटिंग, ये भी एक स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी ही आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाएगी। एक एग्जांपल इसमें मैं ऐड करता हूँ एक प्रोडक्ट की, इससे आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी क्लियर हो जाएगा। रियल एग्जांपल जो है, एक प्रोडक्ट है जो कि किड्स के रिलेटेड डिजाइन की गई है, किंडर जॉय। एक एग की फॉर्म में, एक चॉकलेट फॉर्म में आता है। उसमें हाफ पोर्शन में आपको चॉकलेट मिलेगी और हाफ पोर्शन में आपको टॉय मिलेगा। आई थिंक दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्चुअली द टॉय बट दिस सरप्राइज टॉय। टॉय अट्रैक्ट नहीं करता बच्चे को, उसकी जो सरप्राइज टॉय है कि पता नहीं इसके अंदर से क्या निकलेगा। हर दफा कोई नया टॉय निकलेगा, बच्चा उस चॉकलेट को भी बाय करेगा और उस टॉय के लिए बाय करेगा। मार्केट में बहुत सारी चॉकलेट्स बच्चे के लिए अवेलेबल है, लेकिन किड्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम आप मार्केट में देखें, शॉप्स में, रिटेल शॉप्स में, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, kids are preferred to buy that small egg not because of the chocolate, just because of the toy, and not only the toy but this surprise toy. ये एक मैंने एग्जांपल दिया है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाती है और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही आपके बिजनेस को फेलियर को लीड करती है। सो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मींस द पॉलिसीज, द प्लान एक्टिविटीज, द एक्टिविटीज, द मार्केटिंग मिक्स, द work over the product, work over the pricing, setting the promotion, effective promotion, deciding the best location, means place. All these considered to be the marketing strategy, but the marketing strategies are designed according to the marketing objectives. जैसा ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव हमने डिक्लेयर किया, हम नया सेगमेंट बनाते हैं। हम किड्स के क्लोथ बना रहे थे, अब हम क्लोथिंग बनाएंगे यंग एज पीपल के लिए, 20 एज ग्रुप के लिए। पहले हम बिलो 10 एज ग्रुप के लिए क्लोथिंग बना रहे थे, अब हम क्लोथिंग बनाएंगे 20 या 30 एज ग्रुप के लिए। तो हमारी मार्केटिंग प्लान क्या सेम होगा? क्या सेम कलर स्कीम हम ऑफर करेंगे जो हम बच्चों के लिए ऑफर करते हैं, या बड़ों के लिए जो कलर स्कीम है या जो प्रमोशन एक्टिविटीज है वो अलग होंगी? दैट यू हैव टू डिसाइड द सेपरेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। एवरी सेगमेंट हैज अ डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, एवरी सेगमेंट हैज अ डिफरेंट मार्केटिंग प्लान। टोयोटा की एग्जांपल बड़ी कॉमन, बहुत सारी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आपके सामने, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। उसकी एक प्रोडक्ट कैमरी है जो कि एक लग्जरी स्ट्रेटेजी के साथ आती है, उसकी एक प्रोडक्ट यारिस या करोला की प्रोडक्ट्स है जो कि पाकिस्तान में एक इनकम क्लास को फोकस करती हैं। तो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज उनको फॉलो किया जाता है। इस तरह सुजुकी एक कार मैन्युफैक्चरर है, वो भी मेहरान भी बनाता है और एक एक्सपेंसिव कार भी बनाता है। तो उसकी डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो डिफरेंट इनकम क्लासेस को, डिफरेंट एज ग्रुप्स को, डिफरेंट जेंडर को फोकस करने के लिए बनाई जाती है। पिंक कलर के लैपटॉप्स या पिंक कलर के मोबाइल फोन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स लेडीज को अट्रैक्ट करते हैं। ये एक मार्केटिंग प्लान। लेडीज जो है वो इस कलर, कोई भी आपको मेल नजर नहीं आएगा जो येलो या पिंक कलर का लैपटॉप जो है तो बाय। ये कॉमन सी एक एग्जांपल है मार्केटिंग प्लान की, और ये इफेक्टिव है। गर्ल्स क्योंकि इस तरह के कलर्स को पसंद करती हैं तो वो इनको बाय करते हैं। इस तरह जो बॉयज है वो ज्यादातर डार्क ब्लैक या ब्लू कलर्स को बाय करते हैं, फीचर्स को बाय करते हैं। This slide includes certain type of policies or examples of marketing plan. It means like the first example, focusing on a particular target audience. किसी particular audience पे काम करते हैं, आप kids पे काम करते हैं, या आप सिर्फ एक खास एज ग्रुप है जो 13 से 18 एज ग्रुप है और आप उसके लिए प्ले स्टेशन डिजाइन करते हैं, ये आपकी स्ट्रेटेजी है। You do not offer your products other than the audience.
18 से अबव आपकी कोई प्रोडक्ट नहीं है और 13 से बिलो आपकी कोई प्रोडक्ट नहीं। सो टारगेट ऑडियंस बेस्ड मार्केटिंग प्लान आप बना सकते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड स्ट्रेटेजी, आप प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे काम करते हैं। प्राइसिंग पॉलिसीज, जैसे कि आपके सामने मैंने एग्जांपल अभी दी, गवर्नमेंट ने प्राइसिंग पॉलिसीज पे काम किया, प्रोडक्ट पे काम नहीं किया। प्राइसिंग उसकी ऐसी मार्केट में उसने जबरदस्त दी जो कि कोई भी सियालकोट में उसका कंपटीटर उस प्राइसिंग के मुताबिक उस लो प्राइसिंग को अचीव नहीं कर सकता। बिकॉज ऑफ द मैस प्रोडक्शन उसने उस लो प्राइसिंग को अचीव किया, प्रोडक्ट पे काम नहीं किया। मेरी नजर में ये उसका मार्केटिंग प्लान उसके फेलियर को लीड किया। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में अगर वो प्राइसिंग के साथ कुछ हद तक प्रोडक्ट पे भी काम करता तो शायद वो मार्केट में सरवाइव करता नजर आता। प्रपोज मार्केटिंग एंड प्रमोशनल प्लान। मार्केटिंग प्लान समटाइम्स सिर्फ प्रोडक्ट का बनाना या उसका प्राइस सेट कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसकी एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन स्ट्रेटेजी भी जो मार्केटिंग प्लान का एक हिस्सा भी मैंने आपके सामने एक सरप्राइज टॉय की प्रमोशन आपके सामने रखी है, जो कि इसको समझने के लिए एक सिर्फ एक मार्केटिंग टेक्निक से अपने आप ने अपनी प्रोडक्ट को क्या किया, सेल किया। एंड द प्लेस स्ट्रेटेजी, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हमने एएस में भी पढ़ा। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 1 की स्ट्रेटेजी अलग है, 2 की स्ट्रेटेजी डायरेक्ट अगर आप सेल करते हैं अपने कस्टमर को, या चैनल 2 यूज करते हैं, चैनल 3 यूज करते हैं, तो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज आर फॉलोड। इट फोकसेस ऑन आइडियल प्रोडक्ट। आइडियल मार्केटिंग मिक्स वो होगी जिसमें प्रोडक्ट भी इफेक्टिव है, उसकी प्राइसिंग भी, उसकी प्रमोशन भी, उसकी प्लेस भी। यही दैट इज द सेम डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, जो कि एएस में आपने बिल्कुल लास्ट पे पढ़ी। integrated marketing mix, all the marketing mix elements should be work well, should be joined together। एक भी marketing mix अगर आपका element खराब होगा, आपका marketing plan जो है वो वर्कआउट नहीं करेगा। So this is the fourth element of the marketing plan, sorry, third element. The first, the marketing purpose and the mission. The second one, the situation analysis. The third one is the marketing objective and the marketing strategies. And the fourth one is marketing mix. Simple. क्या मार्केटिंग प्लान, अभी एक पहले क्वेश्चन रेज किया जाता है, क्या मार्केटिंग प्लान एक छुपा के रखा जाता है या ये एक ओपन, ये एक पब्लिक करने वाली चीज है जो कि कंज्यूमर को दिखाया जा सकता है और ये स्टेक होल्डर को शो किया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप सोचें, इसका आंसर अपने जहन में सोचें, whether we share the marketing plan with the audience, with the stakeholder or not। क्या ये मार्केटिंग प्लान एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है जो इंटरनली वर्कआउट करेगा और एक्सटर्नल दुनिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, या ये एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है जो कि स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस किया जाएगा? द आंसर इज इट इज एक्चुअली अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। मार्केटिंग मिक्स, किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो वो मेन्यू आपके सामने रख देते हैं। द मेन्यू इज एक्टिंग एज अ मार्केटिंग मिक्स टैक्टिक्स। उसमें आपकी प्रोडक्ट है, उसमें आपकी प्राइसिंग डिटेल्स हैं, उसमें आपकी प्रमोशंस हैं जिसमें फैमिली डील्स और शेयर बॉक्स टाइप के जो बर्गर्स जो हैं वो आपको लो प्राइस में मिलते हैं, फैमिली डील्स की फॉर्म में मिलते हैं, हैप्पी मील की फॉर्म में आपको प्रमोशन मिलती है, प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन एंड द प्लेस पे आप बैठे हैं। तो मार्केटिंग मिक्स जो है वो इसलिए मार्केटिंग प्लान के अंदर शामिल की गई है बिकॉज एक्चुअली इट इज शेयर्ड विद द कंज्यूमर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मार्केटिंग मिक्स में आप डिसाइड करेंगे कि क्या प्रोडक्ट आप ऑफर करेंगे, द समरी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफर, क्या कलर्स होंगे, क्या स्कीम्स होंगे, क्या फीचर्स होंगे, ड्यूरेबल कितनी होगी, उसकी वारंटी पीरियड, हाउ मच वारंटी पीरियड इज ऑफर्ड। वारंटी पीरियड में लेकिन एक स्टैंडर्ड यूनिट भी है। नॉर्मली 10 मंथ्स की वारंटी जो है वो पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की इसलिए दी जाती है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन है। पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड समझा जाता है कि अगर आप लैपटॉप या फ्रिज या एसी टीवी बाय करते हैं तो दे ऑफर 10 मंथ्स वारंटी पीरियड। 10 माह के अंदर अगर वो खराब हो जाती है, द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर और रिप्लेसमेंट। 2 आर इसमें स्टडी किए जाते हैं। फर्स्ट आर फॉर रिपेयर की कोशिश की जाती है या फिर रिप्लेस करके, कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसमेंट। इससे पहले गारंटी का वर्ड यूज होता था जो कि अब खत्म हो गया हुआ है। गारंटी में सिर्फ रिपेयर की गारंटी देता था कंपनी, लेकिन अब रिप्लेस, अगर प्रोडक्ट ठीक नहीं होगी द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अ न्यू प्रोडक्ट। मोबाइल फोन में अब वारंटी, डब्ल्यू का वर्ड यूज होता है। सो ड्यूरेबिलिटी, डिजाइन, परफॉर्मेंस, ये सारी बातें अगर आप किसी भी कार को बाय करते हैं तो उसके मार्केटिंग प्लान में कार को बाय करने से पहले यू कैन गेट द मार्केटिंग प्लान जिसमें उसके सारे फीचर्स के बारे में लिखा है। देन द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी मींस द प्राइसिंग मेथड्स व्हिच आर यूज्ड टू डिसाइड
whether you are charging the competitive pricing, penetration pricing, skimming pricing, सारे इन टॉपिक से आप इसलिए अवेयर हैं क्योंकि आपने इन सारे स्ट्रेटजीज को, आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अपने लेवल 1 में पढ़ा है। स्किमिंग हाई प्राइसिंग है, पेनिट्रेशन लो है, कंपेटिटिव है, साइकोलॉजिकल साइको प्राइसिंग है, 999 के थ्रू आपको अट्रैक्ट किया जाता है, प्रमोशनल प्राइसिंग है। तो प्राइसिंग की डिटेल जो है मार्केटिंग प्लान के अंदर लिखी होगी। बिल्कुल कॉमनली जब आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मेन्यू के अंदर प्राइसिंग को क्लियरली डिफाइन किया जाता है। आप उधर बैठ के देख सकते हैं कि अगर जो फूड आप ऑर्डर कर रहे हैं उसकी प्राइसिंग क्या है। एनोनिमस प्राइसिंग नहीं है कि जो आप फूड ऑर्डर कर रहे हैं उसका पता नहीं क्या बिल आएगा। Promotion means advertisement, sales promotions, how you advertise your goods and services towards the society and what kind of sales offer, sales promotions जो है वो आप ऑफर करेंगे। फेक प्रमोशंस ऑफर करेंगे या जेन्युइन प्रमोशंस ऑफर करेंगे, ये तो नहीं बताया जाता, बट ये शो किया जाता है कि हम जो ऑफ सीजन में ये वाली प्रमोशंस ऑफर करेंगे, ऑन सीजन में ये वाली, ब्लेस्ड फ्राइडे भी ऑफर करेंगे, ईद सेल्स भी ऑफर करेंगे, डिस्काउंट भी ऑफर करेंगे, और ये सब झूठ होगा समटाइम्स, क्योंकि ज्यादातर जो प्रमोशंस होती हैं वो सिर्फ कंज्यूमर की इनकरेजमेंट में है। ऑफ सीजन में जो क्लोथ्स बाय किए जाते हैं वो ऑफ सीजन क्लोथ्स हैं, उसको नेक्स्ट सीजन में कैसे यूज किया जा सकता है। बहरहाल ये एक सेल्स को इनकरेज करने के मेथड्स हैं। न्यू अराइवल पे क्यों नहीं सेल लगाई जाती? कभी भी मार्केटिंग प्लान में ये क्यों नहीं लिखा जाता कि जो हम न्यू अराइवल देंगे उस पर भी हम सेल लगाएंगे? कभी ऐसा देखा किसी ने? And the channel of distribution has been decided in the marketing plan. Whatever the channel 1 आप यूज करेंगे, channel 2 यूज किया जाएगा और channel 3 जो है वो यूज किया जाएगा। एक वक्त में 2 चैनल्स को भी यूज किया जा सकता है, इवन 3 चैनल्स को भी यूज किया जा सकता है। अगर मैं गुल अहमद की एग्जांपल दूं तो वो तीनों चैनल्स को यूज करता है, आई थिंक सो, 2 चैनल्स को यूज करता है। वो डायरेक्ट भी सेल करता है चैनल 1 भी, वो शॉपकीपर्स के थ्रू भी सेल करता है, माइट भी वो होलसेलर्स के थ्रू भी सेल करता हो। तो ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाटएवर द स्ट्रेटेजी, लेकिन जितनी स्ट्रेटेजी आप मल्टीपल यूज करेंगे आपके रिसोर्सेज उतने ही ज्यादा कंज्यूम होंगे और आपका नेटवर्क उतना ही मैनेज करना प्रॉब्लम है। लेकिन मार्केटिंग प्लान के अंदर ये क्लियर लिखा होगा कि आपकी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी जो है वो क्या है। दिस इज ऑल अबाउट द मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग बजट, जस्ट द लास्ट कंपोनेंट ऑफ द मार्केटिंग प्लान इज द अमाउंट ऑफ मनी। 2 मेथड है, आप बजट पहले सेट कर लें बाद में प्लान बना लें। दूसरा, आप पहले प्लान बना लें और बजट बना लें बाद में। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मार्केटिंग के जो फिनोमिना है उसमें ये डिस्कस किया जाता है कि दैट इज मोर इफेक्टिव बिकॉज ये कॉस्ट इफेक्टिव है। पहले प्लान बना लें, उसके अकॉर्डिंगली बजट सेट करें। पहले बजट सेट करना, बाद में प्लान बनाना रिसोर्सेज की वेस्टेज का बायस बन सकता है। सो द लास्ट कंपोनेंट इज सेटिंग द बजट। It is actually amount of money which is allocated for the marketing department. Overall marketing department में पहले आप ये देखें कि आपका ऑब्जेक्टिव कितनी देर का है, 6 months का है, 1 year का है, उसके अकॉर्डिंगली आपका बजट जो है वो सेट किया जाएगा। That the amount of money allocated by the finance department to the marketing department. That budget is actually spent all of the activities of the marketing. पूरे marketing plan पे इसमें 4 options मैं आपको दे देता हूँ, 4 चीजें जिसपे ये स्पेंड किया जाता है। यही 4 मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सब डिपार्टमेंट हैं, सेल्स, रिसर्च, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप बात करते हैं मार्केटिंग अमाउंट ऑफ मनी की, मार्केटिंग अमाउंट ऑफ मनी 4 चीजों पे स्पेंड की जाती है, सेल्स पे, मार्केट रिसर्च पे, सॉरी सिर्फ रिसर्च पे, रिसर्च की भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, सेल्स पे, रिसर्च पे, प्रमोशन पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे। दैट अमाउंट ऑफ मनी, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट आ गया। कम्युनिकेशन, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट कम्युनिकेट कर सकता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से बजट की रिक्वेस्ट कर सकता है। अगर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट उसमें कंफ्लिक्ट या ऑब्जेक्ट करेगा देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंसल्टेशन जो है वो ली जाएगी। सो मार्केटिंग बजट इज एक्चुअली डिजाइन बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, approved by the finance department with the consultation of the senior managers of the board of directors. This could based on the target sales. एक easy इसका तरीका ये है कि how we decide how much amount of money should be given to the marketing department according to the sales achieved. अगर आपने जितनी सेल्स अचीव की हैं उस सेल्स के पर्टिकुलर परसेंटेज जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को मिल जाता है। इसकी बहुत बिल्कुल एक सिंपल सी एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल
10 मिलियन आपकी सेल्स लग रहा है कि आप अचीव कर लेंगे, तो उसका 1 या 2 या 5% दैट इज एलोकेटेड फॉर प्रमोशन एंड एडवर्टाइज, मार्केटिंग बजट के तौर पे इसको अचीव किया जा सकता है। मार्केटिंग बजट की वैल्यूएशन को भी हमने होल्ड किया। हमने आज जो मेन टॉपिक सीखा है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जो सबसे पहली चीज वो डिसाइड होगी बिजनेस प्लान में, वो आपके मार्केटिंग की टेक्निक होगी। प्रोडक्ट बना लेना सक्सेस नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट आपने बहुत अच्छी बना ली है, बट इस एक्चुअली इफेक्टिव ये है कि आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी को कैसे डिजाइन करते हैं। योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक्चुअली लीड्स टू द सक्सेस। तो मार्केटिंग प्लान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें आपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स बनाए, स्ट्रेटजी बनाई, मार्केटिंग मिक्स को लिखा। स्मॉल बिजनेस इसको सोचते हैं, लार्ज बिजनेस इसको रिटन फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। मार्केटिंग बजट हैज बीन एलोकेटेड, then the marketing plan is established. You people can ask the question if you have any kind of question. Allah Hafiz.